Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This morning we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 6, text number 7. It's a very important verse, often quoted by Srila Prabhupada. Yasyam vai sruyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktirutpadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha. Yasyam vai sruyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktirutpadyate Pumsaha Shoka Moha Bhayapaha. Yasyam vai sruyamanayam Krishne Paramapurushe Bhaktirutpadyate Pumsaha Shoka Moha Bhayapaha. Anyone would like to recite? Nityam Vaishuryamanayam Paramapurishe Bhaktir Utpadyate Pumsaha Sukamo Bhayapaha. Okay. Anyone online would like to recite the verse? Okay. Yasyam, this Vedic literature. Why? Certainly. Shruyamanayam, simply by giving oral reception. Krishna, unto Lord Krishna. Parama, supreme. Purushe, unto the personality of Godhead. Bhaktihi, feelings of devotional service. Utpadyate, sprout up. Pumsaha, of the living being. Shoka, lamentation. Moha, illusion. Bhaya, fearfulness. Apaha, that which extinguishes. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. Please repeat. Simply by giving oral reception to this Vedic literature, the feeling for loving devotional service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. There are various senses of which the ear is the most effective. This sense works even when a man is deep asleep. One can protect himself from the hands of an enemy while awake.
but while asleep, one is protected by the ear only. The importance of hearing is mentioned here in connection with attaining the highest perfection of life, namely getting free from three material pangs. Everyone is full of lamentation at every moment. He is after the mirage of illusory things, and he is always afraid of his supposed enemy. These are the primary symptoms of the material disease, and it is definitely suggested herein that simply by hearing the message of Srimad Bhagavatam, one gets attachment for the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and as soon as this is affected the symptoms of the material disease disappear. Srila Vyasadeva saw the all-perfect personality of Godhead, and in this statement, the all-perfect personality of Godhead, Sri Krishna, is clearly confirmed. The ultimate result of devotional service is to develop genuine love for the Supreme Personality. Love is a word which is often used in relation with man and woman, and love is the only word that can be properly used to indicate the relation between Lord Krishna and the living entities. The living entities are mentioned as Prakriti in the Bhagavad Gita, and in Sanskrit, Prakriti is a feminine object. The Lord is always described as a Param Purusha, or the supreme male personality. The affection between the Lord and the living entities is something like that between male and female. Therefore, the term love of Godhead is quite appropriate. Loving devotional service to the Lord begins with hearing about the Lord. There is no difference between the Lord and the subject matter heard about him. The Lord is absolute in all respects, and thus there is no difference between him and the subject matter heard about him. Therefore, hearing about him means immediate contact with him by the process of vibration of the transcendental sound. And the transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all material affections mentioned above. As mentioned before, a living entity develops a sort of complexity by material association, and the illusory engagement of the material body is accepted as an actual fact. Under such false complexity, the living beings under different categories of life become illusioned in different ways. Even in the most developed stage of human life, the same illusion prevails in the form of many isms and divides the loving relation with the Lord, and thereby divides the loving relation between man and man. By hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed, and real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations. The politicians want a peaceful situation between man and man, and nation and nation, but at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness. Therefore, the politicians' peace conferences cannot bring about peace in society. It can only be done by hearing the subject matter described in the Srimad Bhagavatam about the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. The foolish politicians may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail to achieve success. Until we reach the stage of re-establishing our lost relation with Krishna, the illusion of accepting the body as a self will prevail, and thus fearfulness will also prevail. As for the validity of Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidences from the revealed scriptures, and there are hundreds and thousands of evidences from personal experiences of devotees in various places like Vrindavan, Navadvip, and Puri. Even in the Kaumudi dictionary, the symptoms of Krishna are given as the son of Yashoda and the Supreme Personality of Godhead, Param Brahman. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion, and fearfulness.
These are practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of the Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimrandhasya Jnanaanjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityamane. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschati Destarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. Doesn't look like next Jabalpur is on the list. Anyways, so the background of how Srimad Bhagavatam came into existence is being described here. भागवतम कैसे आया वो बताया जाए. पहले तो नारद जी ने उनको उपदेश देकर चले गए, वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी फिर ध्यान में बैठे, भगवान को देखे, उनके माया शक्ति को देखे, और उस माया से सम्मोहित जो जीव है उनको देखे, और उसके लिए जो सोल्यूशन है वो भक्ति है वो भी देखे. और ये सब देखने के समझने के बाद फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का रचना किया, और उसका श्रवण करने का जो फल है वो भी यहाँ बताया. श्याम वही श्रूयमाणायाम, इसको सुनने से क्या होगा, भक्ति उत्पन्न होगा. प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं. जब कोई व्यक्ति सो रहा है, उसके कोई भी इंद्रिय काम नहीं करते, वो कुछ देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, कुछ समझ नहीं सकता, लेकिन एक ही इंद्रिया जगा रहता है, क्या है वो, कान. जब सो रहा है तो आवाज से ही उठ सकता है, और कान ऐसे इंद्रिय है जब जो कभी भी सोता नहीं है. आंख सोते हैं, बाकी इंद्रिय सब सोते हैं, लेकिन कान सोता नहीं है. कान तो सोता नहीं है, लेकिन कान को अपन चाहे तो आ, बंद कर सकते हैं. ऑफकोर्स फिजिकली बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता तो कोई कितना भी बोले कान में नहीं जाए. एक प्रकार से ये कान हमेशा खुला रहता है, सोते समय भी जगते समय भी कान हमेशा खुला ही रहता है, राइट. लेकिन कान, दो कान है. दो कान मतलब मैं ये जो दो कान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. दो प्रकार के कान है, एक जो बाहर जो दिखते हैं, और एक जो इंटरनल इंटरनल ईयर, यानी मन का जो, मन के अंदर जो जो कान है, यानी सारे इंद्रियां एक्चुअली बाहर नहीं है. बाहर जो है वो तो सिर्फ उसका एक पार्ट है, लेकिन जो जो रियल इंद्रिय है वो अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देख रहा है लेकिन मन वहां नहीं है, तो देखते हुए भी हो सकता है कि नोटिस नहीं किया, राइट.
सो आंखें, एक बाहर की आंखें हैं और एक अंदर की आंखें। उसी प्रकार से बाहर के कान है और अंदर के कान है। तो अगर अंदर के कान बंद है तो बाहर के कान खुला रह के भी कुछ फायदा नहीं, राइट। हम बोलते हैं ना, ये बात सुनता ही नहीं। सुनता ही नहीं का मतलब यानी कि कान में आवाज नहीं जाता। मतलब कान में आवाज तो जा रहा है, वो समझ भी रहा है हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनता नहीं का मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी उसको समझ नहीं रहा है। हाँ, या उसको सबमिशन नहीं, जो बोला गया उसको स्वीकार करने का नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन ऑरल रिसेप्शन सिंपली, जब सुनना मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाज को अंदर लेना, बट लेकिन इसका मतलब यह है कि बेसिकली बीइंग ओपन टू रिसीव द मैसेज, यानी वो संदेश को अंदर लेने के लिए, यानी हृदय में लेने के लिए तैयार होना है। ओपन हार्ट। जब हृदय ओपन रहता है तो कोई भी इंस्ट्रक्शन सीधे अंदर चले जाता है, लेकिन जब हार्ट क्लोज रहता है तो कुछ भी बोले तो अंदर नहीं जाएगा। रावण को कितने लोगों ने समझाया। आज ही मैं सुन रहा था, महाराज के लेक्चर में बोल रहे थे कि विभीषण ने समझाया, इवन कुंभकर्ण ने भी बोला कि भाई तूने किससे पूछ के सीता को बुलाया, लेके आया, और हाँ, तुमने पूरे राक्षस जाति को ही खत्म करने के लिए ये स्टेप लिया है। हाँ, और मंडोदरी उनकी पत्नी ने बताया। हाँ, इवन कुंभकर्ण ने भी बोला था, विभीषण ने भी बोला था कि जब से आप सीता यहाँ आई तब से सब इविल सिम्टम्स, मतलब सारे जो गलत सिम्टम्स सब दिख रहे हैं, मतलब गलत ओमेन्स, क्या बोलते हैं उसको, शगुन, अब शगुन। हाँ, सूरज के आसपास पूरा डार्क सर्कल दिख रहा है, तरह तरह के बताए थे हम। सब बहुत लोगों ने एडवाइस किया, सब उनके हित चाहने वाले, पर वो सुना नहीं, यानी कान खुले नहीं, यानी हृदय ओपन नहीं था, ही वाज टोटली क्लोज्ड। तो उसी प्रकार से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, दुर्योधन का भी, धृतराष्ट्र का भी। बहुत लोगों ने एडवाइस किया, भीष्म, द्रोण, विदुर, सब ने एडवाइस किया, लेकिन किसी का एडवाइस नहीं सुना। सुनने के लिए हार्ट ओपन होना जरूरी। जब हार्ट ओपन रहता है एक सबमिसिव एटीट्यूड के साथ, जब सिर्फ श्रवण करने से क्या होता है, भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाता है, भक्ति पैदा हो जाता है। आई वाज रीडिंग यस्टरडे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम कई बार बोलते हैं कि मेरा मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, माइंड बहुत परेशान कर रहा है ना। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई चीज, हम जब भी कोई चीज देखते हैं या कोई चीज सुनते हैं तो एक प्रकार से वो हमारे अंदर अगर प्रभाव डाल रहा है, तो वो एक प्रकार से एक बीज हमारे अंदर डल रहा है। बेसिकली लाइक, अगर मान लीजिए आपने कोई कोई भी वस्तु को देखा या कोई भी व्यक्ति को देखा, और वो देखने के बाद आपके अंदर इच्छा जगी, कुछ आकर्षण हुआ, राइट। तो वो
एक बीज आपके अंदर डल रहा है, लेकिन बीज तभी डलेगा ना, बीज तभी अंकुरित होगा ना जब उसको अंकुरित होने लायक खेत हो। सो बेसिकली हमारा हार्ट में वो टेंडेंसी जब हो, तभी बाहर के बीज आकर अंकुरित हो सकता है, राइट। आपके अंदर जब टेंडेंसी है कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो फिर वो चीज आपको सामने दिखेगा, तो फिर आपके अंदर इच्छा पैदा करेगा। सो you have a heart, you have a soil within you, which can sprout the seeds of desire. इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल चोरी करने की टेंडेंसी है, फिर वो कॉस्टली कोई चीज देखेगा तो फिर उसके अंदर इच्छा होगी। लेकिन अगर वो टेंडेंसी नहीं है तो फिर वो देख के भी उनके अंदर इच्छा नहीं होगी, राइट। सो वो टेंडेंसी हमारे अंदर होने से, और वो टेंडेंसी का मतलब क्या है, हमारा हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हम किसको किस चीज को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं लाइफ में। सो पॉइंट इज दैट, और ये सीड्स कहाँ से आते हैं अल्टीमेटली, ये सीड्स आते हैं ऑफ कोर्स पांचों इंद्रियों से आ सकते हैं, लेकिन हियरिंग से सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा हियरिंग। बिकॉज जब हम किसी व्यक्ति के अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन का भी डिजायर कब आता है, जब वो उसकी ग्लोरिफिकेशन सुनता है। When you hear the glorification of a certain thing, then वो अट्रैक्शन पैदा होता है। So therefore hearing is very powerful। इसलिए बताया गया है, इवन फॉर एग्जाम्पल कोई दारू पीने का आदत है, किसी को दारू पीने का आदत कैसा है, किसी ने उसको ग्लोरीफाई किया, और ग्लोरिफिकेशन हम सुनते हैं, अरे देखो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है या कुछ ऐसा। हाँ। या इवन कोई स्त्री का आकर्षण है, वो भी कब होता है, जब कोई व्यक्ति उसका ग्लोरिफिकेशन सुनता है, अरे वो लड़की ना कितनी अच्छी है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो जब हम किसी पर्टिकुलर सेंस ग्रेटिफिकेशन का, किसी पर्टिकुलर चीज की ग्लोरिफिकेशन जब सुनते हैं, तो उससे हमारा उसके अंदर उसको एंजॉय करने की डिजायर डेवलप होती है, राइट। और वो जो सीड डलता है, वो खेत में डलता है, वो खेत के हार्ट, हाँ, वो हार्ट में, हार्ट के रूपी खेत, हार्ट के रूपी खेत मतलब क्या है, हार्ट के रूपी खेत में मिट्टी क्या है, टेंडेंसी एंड अल्टीमेटली और बिलीफ्स, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, दैट इज द सॉइल। हमारा फेथ सिस्टम, हमारा बिलीफ सिस्टम, दैट इज अ सॉइल। फेथ मतलब क्या है, हमको फेथ है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में सुख है, वी हैव फेथ इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति में हमें विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, पर वो कितना विश्वास है, हमारा अभी भी ज्यादा ज्यादा विश्वास किसमें है, somehow somewhere in us deep within अभी भी वो बिलीफ है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करके मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी भी हमारे अंदर फेथ है कि our body and senses can give us pleasure, happiness,
still we have belief that material world में हम सुखी हो सकते हैं. So that is a soil. वही मिट्टी है. हाँ. So the thing is, जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तो इमीडिएटली वो सीड डल जाता है उस हार्ट में. इमीडिएटली वो सीड फ्रक्टिफाई हो जाता है, धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होता है. सो ऑन द अदर हैंड, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो जो हमारे अंदर भगवान के ऊपर जो फेथ है वो बढ़ जाता है. सो इसलिए भागवतम सुनने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकली हम बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, लेकिन पर हमारा हार्ट क्लोज्ड है. हमारे कान खुले हैं लेकिन फिर भी बंद है, तो फिर कुछ अंदर नहीं जाएगा. लेकिन कान खोलना मतलब हार्ट को खोलना. जब हार्ट को खोलकर मैसेज सुनेंगे तो फिर वो सीधा अंदर जाता है. सो वी शुड गिव वेरी सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन. प्रभुपाद कई बार यूज करते हैं सबमिसिव ऑरल रिसेप्शन. ना कि मैकेनिकली हम आए क्लास में एज अ ड्यूटी, ठीक है, आ गए बैठ गए सुन ली. नॉट लाइक दैट. हमको कैसे सुनना चाहिए? विद ओपन माइंड, ओपन हार्ट. सो तब क्या होगा? इमीडिएटली हमारे अंदर भक्ति के बीज डलेंगे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पढ़ रहा था कल की, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अप्रिशिएट करते हो, किसी भी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाते हो, तो इमीडिएटली उनके जैसे बनने की इच्छा आपके अंदर पैदा हो जाए. एंड वो क्वालिटीज का बीज आपके अंदर डल जाए. लाइक इफ यू अप्रिशिएट, सी प्रभुपाद कितने ग्रेट है, प्रभुपाद कैसे करते थे, हमारे गुरु कैसे करते थे. So as soon as you appreciate, immediately आपके अंदर वैसा बनने की इच्छा होती है. हम यहाँ दिल्ली में एक डिवोटी से मिले, करुणा चंद्र प्रभु, पंजाब बाग के. तो उनसे मिले तो जैसे उनसे बात किया तो लगा कि वैसा बनना है ना, लाइक दैट. उनके जैसा फेथ डेवलप करना है. सो उनसे एसोसिएट करके, उनको देख के इमीडिएटली हमारे अंदर डिजायर आ गया कि ऐसे बनना है, राइट. या किसी भी डिवोटी को आप रोल मॉडल बनाते हैं तो इमीडिएटली वी डेवलप द डिजायर टू बिकम लाइक दैट पर्सन. और किसी भी व्यक्ति पे हम फेथ डेवलप करते हैं तो फिर उनसे सुन सकते हैं. अगर किसी डिवोटी के ऊपर आपको फेथ नहीं है तो उनसे सुनने से इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इफेक्ट उतना ही पड़ेगा जितना आपको उनके ऊपर फेथ है. सो देयरफॉर अगर हम फेथफुली डिवोटीज से श्रवण करेंगे तो वो हृदय में अंदर जाएगा एंड वो डिजायर्स फ्रक्टिफाई होंगे. So therefore it's very important to develop faith in devotees, develop faith in bhakti. And we should not put any faith in sense gratification. Never put any faith in the senses. जब तक आपको फेथ है सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तब तक फेल्यूर इज गारंटीड. भक्ति में क्यों फेल होते हैं? फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो फेल्यूर क्योंकि हमारा बिलीफ गलत जगह पर है. और गलत जगह पर जो बिलीफ है
वो तभी जाएगा जब हम फेल होते हैं। व्हाट आई मीन टू से, अगर मान लो कोई भक्त तो बनना चाहता है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, और उनको निर्देश दिया गया है, ऑफ कोर्स हम 4 नियम पालन करते हैं इस्कॉन में, 16 माला का जाप करते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मान लो उनका आदत है चैंटिंग सुबह न करना, सुबह 2 माला, 4 माला, फिर 4 माला दोपहर में, फिर 2 माला रात को, ऐसा कर रहा है, हाँ, तो क्या वो सस्टेन कर पाएगा 16 माला करना? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो ही इज डेस्टिन्ड टू फेल। और जब फेल करेगा तब वो रियलाइज करेगा कि उसके कारण ये था, और उसके कारण मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया, इसलिए फिर उसका जो गलत लाइफस्टाइल है उसको चेंज करेगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर फॉर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में इफ समवन हैज टेंडेंसी टू ब्रेक द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, तो उसको कैसे क्या करना चाहिए? यू शुड मेक अ लाइफस्टाइल सच दैट वो ब्रेक हो ना सके, राइट। पर वो ऐसा लाइफस्टाइल बना रहा है जिसमें रिस्क है, तो उससे क्या होगा? तो ब्रेक होगा ही होगा। हाँ। पर जब प्रिंसिपल ब्रेक होता है, इट मे बी सीन एज अ लॉस, बट एक्चुअली इट कैन बी गेन ऑल्सो, क्योंकि वो तो होना ही होना है फेल। पर जब फेल होता है तो उसको क्या क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि हमने हमारी लाइफस्टाइल गलत थी, हमारी आदतें गलत थी। हाँ, इस बार मुझे और ज्यादा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हाँ, तो यानी फेल्यूर एक हमको सिखाती है, फेल्यूर से हम सीख सकते हैं। तो जब फेल्यूर से सीखेंगे तो अ, और अगली बार और सावधान रहेंगे, और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे चेंज करेंगे ताकि दोबारा वैसा गलती कभी ना हो सके। सो देयरफॉर उससे भी लेकिन इंटेलिजेंट काम क्या है? सुनकर ही सीखना। हाँ, सुनने से ये सारा जो बार बार फेल होने का जो झंझट है, उससे हम बच जाते हैं। अगर आपको बताते हैं देखो आग में उंगली मत डालो, जलेगा, तो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है? आग में उंगली नहीं डालता है। लेकिन कम इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करता है? नहीं, देखते हैं क्या होगा, फिर डालेगा, जलेगा, उसके बाद फिर रिलीज करेगा, करेक्ट। बट लेकिन इस बीच में एक तो आपका नियम टूट गया, और दूसरा वो टेंडेंसी भी बन गया, और बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हम्म, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसलिए ये जो सबमिसिव हियरिंग जो है ना, आपको बहुत बहुत लंबी सफरिंग से बचाती है। Submissive hearing saves you from a hell a lot of trouble, hell a lot of time waste. तो श्रवण का ये एडवांटेज है। अगर हम विश्वास के साथ रेगुलरली श्रवण करेंगे, शुद्ध भक्तों से श्रवण करेंगे, तो क्या होता है? हमारे नहीं तो जैसे ना, ए ड्रॉप ऑफ स्वेट इन पीस सेव्स ए गैलन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग वॉर। सुना आपने? मतलब शांति का समय जब युद्ध नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आप पसीना बहाओगे, तो युद्ध में बहुत सारा खून बहाने से बच जाओगे, करेक्ट। तो यानी जब हादसा होने के बाद हादसा होने के बाद क्या होगा? हादसा होने के बाद तो अब इट्स टू लेट,
लेकिन अब पहले से हम अगर श्रवण कीर्तन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो बहुत सारे ट्रबल से, बहुत सारे परेशानी से हम बच जाएंगे। तो इसलिए एक डिवोटी को ना शादी करना चाहिए। किससे? शास्त्र से। बोलते हैं कि शास्त्र से शादी करना चाहिए। अगर शास्त्र से शादी नहीं करोगे, हाँ, तो माया से शादी करना पड़ेगा। Therefore, शास्त्र रेगुलरली पढ़ना सुनना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये श्रवण से क्या क्या है? शोक मोह भय अपहा। शोक मोह और भय, हाँ, नहीं सुनेंगे तो ये तीनों चीजें आएंगे, इसका मतलब शोक मोह और भय। हाँ, एक तो पहले, हाँ, सबसे पहले क्या आता है? मोह। हाँ, सही को गलत और गलत को सही समझते हैं। राइट। जब आप प्रॉपरली हियरिंग नहीं करोगे तो क्या होगा? यू डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड में ले लेते हैं, या चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम मोह, यानी सही को गलत, गलत को सही, गलत फहमी, वैसा हो जाता है। जब मोह मोह हो जाता है तो क्या है? फिर गलती करते हैं। राइट, वो चार डिफेक्ट है ना। इल्यूजन, इल्यूजन से मिस्टेक्स। जब मिस्टेक करेंगे तो क्या होगा? शोक। जब गलती होगा, उंगली जलेगा तो रोएंगे ना। हाँ, तो रोना धोना। और जब पेनफुल एक्सपीरियंस होगा तो फिर उसके बाद क्या आएगा? भाई, सो शोक मोह भय, ये अपने आप ये आएंगे ही आएंगे। लेकिन श्रवण करने से सबसे पहले मोह जाएगा, तो मोह जाएगा तो शोक भी जाएगा, तो फिर भय भी जाएगा, भगवान पर विश्वास रहेगा। हम कई बार ये डर जाते हैं, भाई भी क्या, भाई हेल्दी फियर तो अच्छा है, माया से डरना, लेकिन हम माया से नहीं डरते। हाँ? हम किससे डरते हैं? भक्ति से डरते हैं। हाँ, भक्तों के संग से डरते हैं। हाँ, डर होना चाहिए माया से। प्रभुपाद एक बार बोले, माय डिसेबल्स आर नॉट सफिशिएंटली अफ्रेड ऑफ माया। मेरे शिष्य जो है माया से डरते नहीं। तो माया से डरना अच्छा है, लेकिन हमको वो डर भी कैसा होना चाहिए? माया से इतना नहीं डरना है कि अब तो हम, हमारा तो कोई आशा ही नहीं है, हम तो भक्ति कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। माया से डरना चाहिए, लेकिन भगवान पर भरोसा भी होना चाहिए कि भगवान बचाएंगे। हाँ, देयर शुड बी अ फियर, बट दैट फियर शुड नॉट, वो फियर ये है कि भगवान को अगर भूल गए तो फिर माया में गिरेंगे। फियर होना चाहिए, लेकिन फियर शुड नॉट बिकम व्हाट यू से ओवरवेलमिंग सो मच सो दैट आप भगवान पर विश्वास करना भूल जाओगे। अब ये नहीं सोचो कि भगवान है ना बचाने के लिए। सो देयरफॉर healthy fear is required, but that healthy fear will should propel us towards surrender to Krishna. जब हेल्दी फियर रहता है, वो क्या करता है? आपको भगवान का शेल्टर लेने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अनहेल्दी फियर क्या करता है? आपको डिप्रेशन में ले जाता है। अरे मुझसे हो नहीं पाएगा, मेरे लिए नहीं है, या फलाना फलाना। राइट, वो अनहेल्दी फियर है। तो वो अनहेल्दी फियर चले जाता है भागवतम पढ़ने से या सुनने से। उसमें एक मिनट बाथरूम।
Yeah. So hearing Bhagavatam regularly is very important. ज्यादा से ज्यादा हियरिंग, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में भी हियरिंग करना चाहिए, और क्वालिटी हियरिंग। क्वालिटी हियरिंग का मतलब क्या होता है? हियरिंग विद सबमिसिवनेस एंड ईगरनेस। क्लास में जो बताया जाता है वो हृदय में कब जाता है? उसमें दो टाइप के टेंडेंसी। एक इनडिफरेंस, जैसे जब जब में भी वही रहता है। इनडिफरेंस मतलब हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं हम, बट वो भूख नहीं है। जब खाना कब पचेगा? जब आपको भूख हो। लाइक हमको भूख होना चाहिए, वी शुड फील लाइक ये मेरे लिए मतलब लाइफ एंड डेथ है। हाँ, जब भूखा आदमी खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो वो लाइफ एंड डेथ समझता है, तो वो कैसे खाता है? लेकिन ऑलरेडी वो पेट भरा हुआ है और आपने कुछ एक्स्ट्रा खिलाया, तो फिर वो उतने उत्साह के साथ नहीं खाएगा। सो पॉइंट इज, जब भागवत सुनते हैं एज ए फॉर्मेलिटी नहीं सुनना, बहुत भूख के साथ, ईगरनेस। ये नहीं सुनूंगा तो मैं मर गया, मतलब बेसिकली दिस इज माई लाइफ सस्टेनेंस, ऐसा सुनना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली क्लास, सिर्फ क्लास की बात नहीं कर रहा। इवन कोई सीनियर डिवोटी से कुछ एडवाइस ले रहे हैं, सीनियर डिवोटी कुछ गाइड कर रहे हैं, इट शुड बी लाइक दिस इज माई लाइफ सस्टेनेंस। अगर ये सुनने से मेरा लाइफ बचेगा, नहीं तो मैं खत्म। तो उस ईगरनेस के साथ, उस भूख के साथ जब हम श्रवण करते हैं, देन इट हैज इफेक्ट। जब वो ईगरनेस रहता है, क्लास में नींद नहीं आता, राइट? दैट मींस वी आर जस्ट टेकिंग इट कैजुअली। ठीक है, आप भूखे हो, खाना खा रहे हो, तो खाते खाते झपकी लेते हो क्या? प्रसाद लेते समय कभी झपकी लेते हैं क्या? क्यों नहीं? हाँ? खाते समय जब झपकी नहीं लेते हैं, तो क्लास में क्यों लेते हैं? जब में क्यों लेते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन। इट्स नॉट अ टाइम फॉर जोक्स। आपको हो सकता है ये बहुत कैजुअल लग रहा हो, फाइन, बट दूसरों को डोंट मेक इट कैजुअल फॉर देम। सो या, सो हियरिंग विद ईगरनेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्या होगा? अ, आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उसमें मिलेगा। जब हम प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, कई बार आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम होता है ना, उसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन उसमें मिलता है, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, इट हैज द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जब आप ईगरनेस के साथ भागवतम पढ़ते हैं,
लेक्चर सुनते हैं, तो आपके प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है उसमें। But then, as I said, we have to have read, hear and read with that eagerness. जैसे आयुर्वेद में बताते ना, सारे जो बीमारियां हैं वो पेट से जुड़े हुए रहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति का डाइजेशन ठीक नहीं है तो सारी बीमारियां आती हैं। जिसके डाइजेशन ठीक है ना, कोई भी बीमारी ठीक किया जा सकता है। क्योंकि डाइजेशन मतलब क्या है, शरीर कितना उस चीज को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, आपको बेस्ट मेडिसिन भी देने के बाद क्या होता है, काम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज मेडिसिन अंदर जा रहा है, लेकिन वो मेडिसिन को बॉडी ले ही नहीं रहा है, राइट। सो पॉइंट इज दैट डाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। यानी डाइजेशन यानी भूख, जब भूख होता है तब डाइजेशन होता है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जब भूख हो तभी खाना चाहिए। सो या सो दैट इज और कभी कभी हमको हो सकता है वो ईगरनेस कम हो। अब प्रश्न यह है कि अगर ईगरनेस नहीं है तो कैसे डेवलप किया जा सकता है, राइट। कई बार हम एक्शन से भी डिजायर डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डांस करने की इच्छा नहीं है, फिर भी अगर आप डांस करोगे तो एंथुसियाज्म ऑटोमेटिकली आएगा। हाँ, कोई चीज सही है, हो सकता है अभी हमारे अंदर वो ईगरनेस इतना नहीं है, लेकिन फिर भी करने से क्या होगा, ईगरनेस भी आ जाएगा पीछे। जैसे if you are not enthusiastic, you should act enthusiastic। अगर उत्साह नहीं है तो क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। एक्ट करना मतलब ये नहीं प्रिटेंड करना, धोखा दे प्रिटेंड, वो एक अलग चीज है। हम दूसरों को धोखा देने के लिए, इंप्रेस करने के लिए करते हैं, वो नहीं। बल्कि हम वो एंथुसियाज्म डेवलप करने के लिए एक्सटर्नली हम एक्ट करें, ताकि वो एंथुसियाज्म डेवलप हो। तो सिमिलरली वी हियर विद ईगरनेस, देन विल डेवलप। और ईगरनेस का सिम्टम क्या है, टाइम पे आना क्लास में, स्पीकर से पहले आकर बैठना, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे लेट आकर ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले तो रेगुलरली सुनना, रेगुलरली क्लास अटेंड करना, उसके बाद टाइम पे आके अटेंड करना, नोट्स बनाना, एंड आगे जाके बैठना। दिस आर ऑल सिम्टम्स। जनरली क्लास में जो बैक बेंचर्स रहते हैं वही सोते हैं ना ज्यादा। क्लास में जो पहले सामने जो बैठता है वो झपकी नहीं लेता है, झपकी लेने वाला बैठ ही नहीं सकता। हम टीचर के सामने झपकी लेंगे तो क्या होगा, इसलिए जाके पीछे ही बैठता है, बैक बेंचर्स ना। लेकिन सामने कौन बैठ सकता है, जो ईगरली हर एक वर्ड को ऑब्जर्व करता है और नोट्स बनाता है, क्वेश्चंस पूछता है, वो व्यक्ति और नेचुरली सामने बैठ, तो सामने जाके बैठना। ऑफ कोर्स नॉट इन द सेंस दैट वी आर इनसेंसिटिव, किसी को हटा गए तो हट, वेट वेट, ऐसा नहीं। बट वी शुड शो एंथुसियाज्म एंड ईगरनेस
by these things. And questions पूछना. Questions कब आते हैं? जब उसके बारे में सोचते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आते हैं. इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि I should be seen as a what do you say, very interested student. प्रेस्टीज के लिए ऐसा नहीं. We should have eagerness to ask. कभी कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी पूछना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हम क्यों पूछ रहे हैं. That's the thing. If, as I said ना, if you don't have enthusiasm, then act enthusiastic. तो अगर आपको क्वेश्चन पूछने का हैबिट डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. भले मैं हमारे गुरु महाराज के लेक्चर में बैठता था, तो मेरी साधना थी कि मुझे क्वेश्चन पूछना है. कभी कभी मैं बहुत सोचने के बाद भी क्वेश्चन नहीं आता था, फिर भी मैं सोचता था कि कुछ तो पूछना चाहिए. बट वो पूछना इसलिए नहीं ताकि पीपल विल प्रेज यू, आप तो क्वेश्चन पूछते हो, ऐसा नहीं. बट सो दैट आई वांट टू डेवलप दैट हैबिट. विद दैट idea you can also ask. So even if you do artificially, it is not wrong. We are not we should not do it to grab attention. We should do it for developing that habit, developing a good habit. So इसलिए enthusiastically hearing करना, enthusiastically chanting करना, enthusiastically हर कार्य करना, it's very important. And most importantly, we should have high regard for the speaker. हो सकता है वो स्पीकर आपसे जूनियर हो सकता है आप वो स्पीकर आपके इक्वल लेवल पे हो या जूनियर हो, या आपको लगता है कि इनके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, ये क्या बोलेगा मैं क्या सुनूं. But we should know that every devotee is very dear to Krishna. And उनके अंदर कितनी भक्ति हमें नहीं पता. इसलिए गीता बोले ना, पिछेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य. अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दुराचारी भी हो, सुदुराचार हो, यानी सबसे घटिया काम किया मान लो, तो भी भजते माम अनन्य भाग, अगर मेरे भजन में लगा हुआ है, अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, उसको साधु ही समझना चाहिए. क्योंकि एक्सटर्नली हो सकता है किसी ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन वो गलती, कोई भी गलती कितनी भी बड़ी हो, वो टेम्पररी है. बिकॉज कर्मा इज टेम्पररी, नो, दैट कैन बी चेंज्ड. तो वो एक्सटर्नल सिम्टम है, लेकिन इंटरनली वो भक्ति कल्टीवेट कर रहा है. इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, उसके अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज है वो चले जाएंगे. तो इसलिए हम किसी डिवोटी के अंदर जो नेगेटिव क्वालिटी वो देखते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि अंदर से वो भक्ति कल्टीवेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव क्वालिटी चला जाएगा. हाँ. और कई बार ऐसे भी हो सकता है कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, लेकिन गलती करते समय हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वो गलती कर रहा है, पर हो सकता है कि वो गलती करते समय भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कि भगवान मुझे इस माया से निकालो. वो हमको दिख नहीं रहा है. करेक्ट. Someone even in a fallen condition, if he's praying to Krishna, please save me, Krishna, he's not the same as any other fallen person.
So how he is praying, how he is taking shelter of the process of bhakti, वो हमें नहीं दिख रहा है. हमको सिर्फ ये दिख रहा है कि एक्सटर्नली वो क्या कर रहा है. तो इसलिए हमको थोड़ा सा विजन थोड़ा सा डीप होना चाहिए, एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए. You should not just go by what he is doing. You should go by what is his aspiration, what is his goal, what he is trying to become. These are important questions. That's how we should see a devotee. ठीक है. So therefore regular hearing is very important. Hearing Srimad Bhagavatam is extremely powerful. अगर रेगुलरली करेंगे without fail every day we should do hearing. और hearing में भी क्या करना चाहिए, किन किन से सुनना चाहिए. आजकल YouTube और क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, YouTube, इंटरनेट में बहुत सारे सबका सबका बहुत लोगों का बहुत कुछ मिलता है. बट वी शुड नॉट डू दैट नेक्टर हंटिंग. हमें नेक्टर हंटिंग नहीं करना चाहिए. हमको क्या करना है, जो रिकमेंड किया गया है अथॉरिटीज के द्वारा कि आप इनका सुनिए और उनका सुनना है सबसे ज्यादा. नेक्टर हंटिंग मतलब कहाँ हमको नेक्टर मिलता है, इधर इधर से मिलता है, उधर से मिलता है, इधर से सुनो उधर से सुनो, 10 जगह से सुनो, जहां मजा आता है वो सुनो. ये सुनना अपनी मजा के लिए नहीं होता है, अपने हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है. क्या आजकल क्या ना एंटरटेनमेंट का जमाना है, तो भक्ति भी एंटरटेनमेंट हो जाता है. तो जहां हमको एंटरटेनमेंट मिलता है वहां से सुनता है, जहां हमको मजा आता है सुनने में वो सुनता है. ऐसा नहीं, राइट. प्यूरिफिकेशन के लिए हम सुनते हैं. तो इसलिए प्यूरिफिकेशन कब होगा, व्हेन यू सरेंडर. और सरेंडर किससे होगा, हम सोचते अरे उनका लेक्चर बहुत मजा आता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है. हाँ, तो अब वो मजा के लिए आप सुने, वो प्यूरिफिकेशन कैसा होगा. हम सुनते हैं एज ए सर्विस, राइट. तो सर्विस किन पर होगा, किनको होगा, जिन पे जिनकी हम हमें सेवा करनी है. हाँ, उनसे सुनना जरूरी है, जिनसे हमें सीखना है, जो हमारे गुरु हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं. ऐसा नहीं कि बस किसी को भी अपने मन से मान लो गुरु, ऐसा नहीं. वंस यू हैव कनेक्टेड टू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, देन यू शुड बी फेथफुल एंड लॉयल. बहुत सारे डिवोटीज हैं, सब अच्छे हैं. डिवोटी मतलब ही अच्छा होता है. ऐसा नहीं कि कोई डिवोटी अच्छा है एक बुरा है इसलिए उनका नहीं सुनना है, ऐसा नहीं. डिवोटी सभी अच्छे हैं. हाँ, सभी अच्छे हैं का मतलब ये नहीं कि हम सभी से सुनेंगे. हमें उनसे सुनना है जो जिनसे हमें गाइडेंस लेना है, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु, ऐसा हमारे अथॉरिटीज जिनको रिकमेंड करते हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. रेगुलरली सुनना भागवतम एंड रेगुलरली पढ़ना प्रभुपाद जी के बुक्स. ये सब करने से we can easily can be safe. तो रेगुलरली सुनता है वो जिंदगी के बहुत बड़े बड़े हादसे से बच जाता है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं ऑनलाइन. ऑनलाइन क्वेश्चंस. ओके. ऑनलाइन में कोई प्रभुजीस नहीं है. माता जी का भी क्वेश्चन लेंगे, बट आर देयर एनी प्रभुजीस फर्स्ट. ओके. यहाँ पर दामोदर प्रभुजीस. Well, it was very nice class.
one important thing that I like. So you told that belief system, your belief system in sense gratification, that it will give us happiness. That's why we are into that. We want that. So it comes to previous samskaras also. So if one associated with women for a long time, like that. So whenever he sees, the lust develops automatically, that seed develops. So that is the hearing also, and when he uh, when he has done so, I mean, acts like association of women, so that lust develops. So my question is, if whatever such things happen, what should we have precaution? How to overcome that? Anything it may be like prasad also when it comes. So nice, everything is nice. Full. So we just think we that time we don't remember. We just know satisfy our hunger. How to train our mind in that way so that the energy of Krishna they must be used. At that moment we just forget. So for our enjoyment, it's nice. Don't see that there is food inside, or don't see that they are that we use for service. Two different questions actually. Prasadam, wala cheez alag hai, and other thing is different. So the thing is, if you have a tendency, you have to stay very far. That is very important. टेंडेंसी अगर है तो दूर रहो, बहुत दूर रहो, क्रोसो दूर रहो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द टेंडेंसी, अगर मान लो अगर आपको खाने की टेंडेंसी है और आपको प्रसादम सेल्स में लग प्रसादम भंडार में रख दिया सेवा, तो क्या करोगे? तो वो खाते रहे. किसी का मान लो पैसे का वीकनेस है और उसको पैसे वाला सेवा में लगा दिया, तो क्या होगा? वो 2 नंबर ही करेगा. हाँ, हाँ, किसी को अगर लेडीज वीकनेस है तो उसको लेडीज वाला पिचिंग वाली सेवा देना ही नहीं चाहिए उसको. So whatever weakness you have, you should not give the service according to that weakness. You should give a different service. अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा सा टेंडेंसी है, आपको लगता है मेरे टेंडेंसी है, अरे वो वाली सेवा मत करो, बहुत दूर रहो ऐसी सेवा से, दूसरी सेवा करो. गलत टेंडेंसी है अगर, दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. और दूसरा क्वेश्चन ये है प्रसादम, सी डोंट थिंक दैट भक्ति में एंजॉयमेंट नहीं है. एंजॉइंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग. इफ यू आर एंजॉइंग, अगर इफ यू आर एंजॉइंग lecture, is it wrong? If you are enjoying chanting and dancing, is it wrong? We have to enjoy. Bhakti means to enjoy. Bhakti does not mean to suffer. Bhakti means enjoying. Correct? Bhakti मतलब enjoy करना ही है. But वो enjoy करना है जो enjoy करने से कृष्ण खुश होते हैं. अगर इवन प्रसादम टेस्टी है, वाह कितना अच्छा सब्जी बनाया यार, बहुत टेस्टी है. Is it Maya? No. कृष्ण has to, ये शाक कृष्ण आस्वाद लो, ये शाक ये सब्जी कृष्ण ने खाया, तो कितना टेस्टी है. It's not wrong. You just have to remember Krishna. That's all. Know that it is prasadam. So enjoying anything in devotional service is not a wrong thing. In fact, it's the right thing. You should enjoy. ये enjoy करोगे तभी ना दूसरे enjoyment से दूर होगे. So enjoy करना, भक्ति में enjoy करना गलत नहीं. In fact वो सही है और करना भी चाहिए. But remember करना चाहिए कि ये प्रसाद.
कृष्ण प्रसाद कितना अच्छा है. When you say deities, wow, so beautiful, कितने सुंदर deities हैं. Is it wrong? कीर्तन में बहुत मजा आया, कितना अच्छा कीर्तन किया. Wrong? No. It's right. It's required. All right. First, I just want to, what is the, I mean, you told precaution. Hmm. To remove petals. It will take time. It will over a period of time when you intensely do your devotional service. Suffering is meant to teach you something. देखो, अगर कोई व्यक्ति सुनकर सीख लेता है, फिर सफरिंग की जरूरत नहीं है. सुनकर सीख लेता है तो सफरिंग की जरूरत नहीं. और सुन के नहीं सीख पाता है तो उसको सफरिंग की जरूरत है. करेक्ट. सो आप सुन के सीख लो कि इट इज नॉट गुड, सो यू शुड स्टे फार अवे, एंड देन यू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस इंटेंसली. तो धीरे धीरे वो जो फेथ है उसमें वो चले जाएगा, कृष्ण पे फेथ आ जाएगा. It may take long time also. That's okay. As long as you are in devotional service, it's fine. कई बार किडनी स्टोन, मुझे किडनी स्टोन बोलते हैं, अगर छोटा किडनी स्टोन है ना तो क्या करना चाहिए. वो बोलते हैं कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, अपने आप चले जाएगा. कई लोगों को स्टोन्स कई सालों से पड़े रहते हैं स्टोन्स, पर he is living healthy, no problem. But you should drink lot of water, it will go away. Like that. So we may have that negative tendency, but when we do intense hearing regularly, over a period of time it will go away. ठीक है. Yes, सुखदेव प्रभु. Three questions. I'll ask first. First one is really short regarding the past tense. रावण का आप नाम लिया. So एक डाउट आया कि रावण को श्राप था कि किसी भी स्त्री को टच करेगा विदाउट गंगे तो वो जल के फंस जाएगा. बट सीता मैया को लंका में टच नहीं किया, बट पकड़ के तो लेके गया था, वहां से रथ में बैठाया. श्राप ये है, एक्चुअली क्या किया रावण ने रंभा को रेप किया एक्चुअली, फोर्सिबली एंजॉयड हर. और रंभा के जो हस्बैंड है नलकुवर, और वो ब्रह्मा जी के पास गया, और वो ब्रह्मा जी के पास जाकर बोलते हैं तो नलकुवर ने श्राप दिया कि अगली बार किसी स्त्री को रेप करेगा, मतलब उनकी इच्छा के बिना उनके ऊपर फोर्स करेगा तो उनका सर फट के मर जाएगा. और ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु. ब्रह्मा जी ने भी उसको एम्पावर किया उस श्राप को. So he could not rape or he could not force himself like that. So therefore इसलिए वो सीता को कुछ कर नहीं पाया. He was waiting for Sita to agree. All right. Yes. तो जैसे अभी आपने डिस्कस और थिंग्स और लेक्चर I can apply anywhere. So एक point आप बोले eagerness वाला, that is really true. But in this particular condition of mind, I don't have that much eagerness. I have still worldly needs. So अगर जैसे for example if I slept only for 4 hours
and if I go to Mangal Aarti and then sit for chanting, Hmm. even though I am eager to chant little bit, I want to chant purely, but need is there. So I will fall asleep. In the class also same thing will happen. So Abhi is particular statement which we are. We need to do both of these things. We need to follow disciplines, rules and regulations, Mangal Aarti, chanting, hearing class. At the same time, take care of our health. Hmm. Otherwise, long term. So So how to balance these? It's quite difficult nowadays. But how much it is important, please enlighten us and what other we can add on. Take care of it. गुड क्वेश्चन. पता नहीं ऑनलाइन वो आवाज सबको आ रही थी कि नहीं. सुखदेव प्रभु पूछ रहे हैं कि बॉडी का भी नीड्स देखभाल करना जरूरी है, तो इसलिए प्रॉपर रेस्ट लेना वगैरह जरूरी है. लेकिन एट द सेम टाइम मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम करना भी जरूरी है. तो इसलिए जल्दी सोना, राइट. इसलिए जल्दी सोना, सफिशिएंट रेस्ट देना बॉडी को, एंड दैट्स इट. एंड अच्छे से साधना भी करना. दैट इज द सॉल्यूशन. इज इट डिफिकल्ट? That is ideal, but it is not ideal. Sometimes situations are real. Yes. So therefore, we should be devotees should do some tapasya. अगर कभी लेट नाइट हो गया तो क्या करना चाहिए? बॉडी को रेस्ट देना चाहिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए? लेट नाइट अगर हो गया मतलब बॉडी को रेस्ट देना चाहिए कि मॉर्निंग प्रोग्राम? हाँ, एक बार ट्राई प्रैक्टिस. आंसर बदल दिया दामोदर. ब्रो अटेंड करने के बाद थोड़ा टाइम डिस्कस. I personally prefer morning program. हेमंत ब्रो, why are you so angry? Your expression is like that. बॉडी नहीं, ये कि बॉडी का ये सबका फुल बॉडी उसको No. हाँ, health issue is different. देखो, health, someone is sick, it is different. कोई बीमार है वो एक सिचुएशनल है. बीमारी में एक अलग बात है. या बीमार हो सकता है, आई डोंट नो वो कितना सीरियस, कितना सही में बीमार हो सकता है, वो एक अलग बात है. बट वो रेयर केस है. दैट इज नॉट जनरल केस. जनरली दैट इज a struggle between body and soul, right? किसको इंपॉर्टेंस देना है? Body needs and soul needs, which is more important. So जो बहुत सिंसियर रहता है ना, बहुत ज्यादा सिंसियर रहता है, वो 2 बजे सोकर भी 4 बजे उठ जाता है. मतलब उसको सोल को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है वो व्यक्ति. So you have to prioritize morning program at any cost. And after morning program you take rest. I'm not saying कि रेस्ट लेना ही नहीं. मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया उसके बाद you can take rest. जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे रेस्ट करना चाहिए. करेक्ट. So after so the thing is, ideal is what? Ideal is go early to bed. Take care of both equally. That is the
what we should aspire for. But exception should not become a norm, right? Exception क्या है, कभी लेट नाइट प्रोग्राम कभी हो गया, पर अगर आप डेली लेट नाइट प्रोग्राम ही कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड. You should try to avoid as much as possible. As much as possible, try to go to bed early, 9:30 or 10 maximum, and then you can easily attend everything morning program, correct? So that should be the standard. But by chance, unavoidable, kabhi late night program ho gaya. So in that situation, a sincere devotee, what he will do, he will still come for morning program, full attend morning program, and then you take rest after morning program. Because एंड अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको हम दोषी जैसा नहीं देखते हैं, बट आप कितने ट्रांसेंडेंटल हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो. इफ यू रियली हैव eagerness to attain Krishna, you should also rise a little bit above bodily needs. Of course, अगर कोई रेस्ट कर रहा है तो उनको हम फोर्स नहीं करते. मान लो कोई रात को 12 बजे आए और वो मंगलारती नहीं आ पाया, अरे मंगलारती क्यों नहीं है, माया, ऐसा नहीं करते हैं. But if you are in a situation, you should always try to attend morning program. ये अपने लिए बता रहे हैं, जैसे दूसरों पे फोर्स करने के लिए नहीं बोल रहे. बट लेकिन अगर हमको सोचना चाहिए, तो क्या हुआ 12 बजे आया, 1 बजे आया तो क्या, फिर भी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा. So that will be more pleasing to Krishna. That will be really, वही तो टेस्ट है ना. That is the testing, real testing period. आप जितना अगर स्ट्रॉन्ग फेथ है तो बॉडी नीड्स को ट्रांसेंड कर सकते हैं. हाउ Prabhupada used to do, how Goswamis used to do, right? Of course we cannot compare with Goswamis. उनका ऑस्ट्रिटी के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट अगर वो लोग इतना कर सकते हैं, निद्राहार विहार का जितना वो चाहते हैं दिन हो चाहिए, वो सब उन्होंने निद्राहार सब कुछ छोड़ दिए, वो उतना कर सकते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं. लेट नाइट भी होगा बाई चांस तो भी मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. इतना अगर नहीं करेंगे तो हम, मतलब यू आर टोटली कंट्रोल्ड बाय द बॉडी. मतलब बॉडी को आप सोल के ऊपर रख दिए. वी आर सेइंग फर्स्ट माय बॉडी देन सोल. इट्स नॉट लाइक दैट. Like soul wants to, we as a soul, we want to fight, but the body, because we are in a conditioned state, body does not allow us. Like we are sitting for chanting, but we are sleeping on. We are sitting for Bhagavatam, we want to hear, but what we can do, we are sleeping. At that time thought comes, either should I sleep or either should I chant only. You know, इस दो में से कुछ एक ही हो जाए, क्योंकि चैंटिंग 15 मिनट में एक राउंड हो रहा है, सुनाई कुछ दे नहीं रहा है, घसीट आ रही है बस, और नींद भी नहीं हो रही, तो दोनों ही लॉस है. In that situation, you know what you should do. In that situation, you should understand that Krishna is satisfied by your eagerness, not by, अगर आपको चैंटिंग के समय पे झपकी आ रही है पर आप फाइट कर रहे हो उसको, you think Krishna is not satisfied? Krishna is satisfied not by the fact कि आपको कितनी झपकी आ रही है कि नहीं आ रही, उस झपकी के साथ आप कितना लड़ रहे हो. Krishna wants to see that. You are fighting, you are eager, you are developing the eagerness. और जब eagerness रहेगा ना तो automatically नींद नहीं आएगी. You know, if you develop a higher level of eagerness ना, then you know नींद भी नहीं आएगी. अगर आपको कम भी नींद हुआ ना, अगर कोई मजेदार चीज हो तो फिर नींद आती है क्या? नहीं आती ना. So if you are developing that eagerness, then Krishna is happy with that. You are struggling,
It's not just externally. अगर झपकी भी ले रहे हो तो भी उससे फाइट करके आप सुन रहे हो. So you are showing to Krishna that Krishna, I want you to prioritize you, right? Krishna is still satisfied. As you are fighting, that itself is pleasing to Krishna. Therefore, I would say we should definitely prioritize the morning program at any cost. In fact, जो senior कुछ devotees हैं, वो लोग इतना glorious भी इसीलिए है. यहाँ एक जिता मित्र प्रभु है, पता नहीं कितने साल, 27 साल या कुछ, और वहाँ आनंद वृंदावन प्रभु है. 27 साल में कभी मंगल आरती मिस नहीं, not once. It is not because उनका बॉडी कुछ स्पेशल बॉडी है, हमारा नॉर्मल बॉडी है, उनका एबनॉर्मल बॉडी है, ऐसा नहीं है. It's just nothing but eagerness. It's nothing but eagerness, और कुछ नहीं. If you have eagerness, nobody, nothing can stop you. Eagerness another. But at the same time, अगर कोई devotee particular situation में है, see, all these rules are for us. I'm saying, see, it is not to be used as an instrument or as a weapon to judge others. ये हमने सुना, ये देखो ये सो रहा है ना, तो मतलब he is in Maya. That is, if you use it like that, then it becomes aparad, Vishnu. But if you are asking because हमको क्या करना चाहिए, so then this is the answer. Correct? So ऐसा जो करता है ना, वो उसको स्पेशल मर्सी मिलती है, स्पेशल एम्पावरमेंट मिलती है. करेक्ट? कृष्णा इज सो satisfied कि भाई आप even you are controlling your bodily needs just for me. Prabhupada would be so pleased, Krishna would be so pleased. And then, the kind of mercy you will get, the kind of empowerment you will get is different. You can always say, my body is tired, I am taking rest. Nobody will say anything. Okay, no problem, Prabhu, आप rest कीजिए, actually आप बहुत tired है, rest करना चाहिए, यही बोलेंगे. Nobody will say, hey, you are in Maya or anything. Nobody will say that. But you will miss out. अब ये करते तो जो मिल सकता था, वो करने से नहीं मिलेगा. Correct? You will always get more mercy or better mercy if you can prioritize at any cost. Correct? Yeah. All right. Okay. Online we have questions. Late हो गया, आप लोग जाओ और प्रसादम लेट हो रहा है, आप लोग जाओ प्रसादम ले लो और मेरे लिए प्लेट रख दो, प्लेट रख के लेके आना. ओके. ऑनलाइन शशिमुखी माता जी, चंचल ले लिया. शशिमुखी माता जी, यस. Hare Krishna Prabhuji, Danvat ma'am. Thank you so much Prabhuji for such an inspiring class. So my question was, आपने lecture के mid में mention किया था about quality hearing, which included two things. First was submissiveness and second was eagerness. Then आपने बताया था कि eagerness की qualities जो होती है regular presence, you have to be punctual, making notes and sitting in front, etc. So sometimes we see that like we have some sort of till some extent we have eagerness, but eagerness तो होता है, submissiveness is not very intense. So like what is the quality of being submissive, and also how do we intensify this quality? Because eagerness तो हमको ये चीज पता है, so like if we act also and then we develop that, but submissiveness को हम कैसे intensify कर सकते हैं? By maintaining respect, by developing
by always glorifying the devotees and hearing only about the glories of devotees. Devotees के glories सुनना और उनको glorify करना. Never hear offense, never hear criticism. Always hear only glories and glorification, and always only speak glories and glorification. और जो जितना glorify करता है ऐसे devotee से associate करना. जो criticize करते हैं ऐसे devotee से दूर रहना. Yes, sir. So then naturally you will always develop a positive faith. ठीक है. जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्णा धन्यवाद. Hare Krishna. Any other question, Chanchal? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. धन्यवाद. आपकी आवाज बहुत धीमे से आ रही है. सॉरी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि हाउ टू ईगरनेस कम इन आवर लाइफ फॉर भक्ति. Eagerness कैसे आएगा ऐसा? यस प्रभु जी. I just said, by acting enthusiastic, you develop enthusiasm. By acting as if you have enthusiasm, you will develop enthusiasm. Regularly सुनने से, भले आपको eagerness नहीं है, लेकिन आप सुनते रहो regularly. हाँ. भले आपके अंदर वो नहीं है, फिर भी you do it anyway. फिर वो feeling अपने आप धीरे धीरे आएगा. बट प्रभु जी, आपने एक प्रभु जी का आंसर किया था कि अगर आपका मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको अटेम्प्ट करना है, आपको फिजिकली आप नहीं हो बेस्ट प्रिपेयर, नींद आ रहा है, सब कुछ आता है, आपको उससे फाइट करना है. बट अगर हम उसमें चैंटिंग करते समय अगर नींद आता है और हम फाइट करते हैं, तो उस समय जब हियरिंग जो रहता है मंत्र का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता. इवन हम सेटिस्फाई नहीं करते, उस कारण हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमने चैंटिंग अच्छे से नहीं करी, तो अब हमारा दिन अच्छे से नहीं जा पाएगा उसके आगे. I'm sorry, मैं समझ नहीं पाया, क्या बोले? प्रभु जी, आपने कहा था कि अगर हम मॉर्निंग प्रोग्राम अटेम्प्ट करते हैं, भले अगर हम 2 आवर्स भी सोते हैं, उसके बाद भी अगर हम सोल की चीजों को मतलब कृष्ण प्रायोरिटीज करते हैं वहाँ पे, एंड बट हम अगर उसमें चैंटिंग कर रहे हैं और हमें नींद आ रही है, तो हम उस मंत्र को प्रॉपरली सुन नहीं पाते हैं वहाँ पे, एंड उससे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है कि हमने आज चैंटिंग अच्छे से नहीं हो पाया, एंड मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं होता है फिर उसके बाद. चैंटिंग अच्छे से नहीं हो पाया. चैंटिंग अच्छा से होना मतलब क्या है? अच्छा से होना मतलब proper hearing. But what is proper hearing? Not just how many mantras you heard, but it is about how much you are struggling to hear. Struggle. Krishna sees your struggle, and by your struggle, Krishna is more pleased. That is very important to understand. अगर कोई स्ट्रगल करता है, कृष्णा इज नॉट सीइंग लाइक ए मैथमेटिशियन कि कितने मंत्र आपने सुना, कितने नाम सुना. कृष्ण ये देख रहे हैं कि वो सुनने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं. समझ रहे हो चंचल? यस प्रभु जी. Krishna is seeing your struggle. That you should not forget. Krishna is not just seeing externally. You have struggled, you should be happy in that. देखो, आज मैंने struggle किया, आज मैं नींद बहुत आ रही थी, फिर भी मैंने fight करके कोशिश किया. You should be happy by that. That will give you more spiritual happiness than उस टाइम पे सो गए
और बाद में आकर अच्छा से चैंटिंग करे। एक दिन दोनों ट्राई करके देखो, एक दिन ये एक दिन वो। एक दिन आपको लेट नाइट हुआ और सुबह जल्दी उठ के फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो, और स्ट्रगल करके फिर मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट करके फिर बाद में सोए। और दूसरे दिन लेट नाइट हुआ तो सो गए, लेट उठे, लेट उठ के फिर अच्छे से चैंटिंग करे। दोनों में किसमें ज्यादा आनंद आएगा? दोनों में किसमें ज्यादा? हाँ, यस, फर्स्ट वाला, because that will be more pleasing to Krishna. Krishna is not just seeing mechanically आप कितने अच्छे चैंटिंग कर रहे हैं. Krishna is seeing how much you are struggling for him. How much you are willing to take the pain for him. हम बॉडी को ही सब कुछ नहीं बना सकते। अगर बोले बॉडी टायर्ड है तो नहीं कर सकते, तो मतलब बॉडी ही कोई सुप्रीम बना दिया आपने। You have made body as the supreme. अगर आप कहेंगे कि बॉडी जब कोऑपरेट करेगी तब भक्ति करूंगा, बॉडी टायर्ड है तो नहीं करेंगे, तो मतलब बॉडी को ही सुप्रीम बना दिया ना, बॉडी को प्रायोरिटी कर दिया। देन वेयर इज द तपस्या? and what is the meaning of being transcendental? Of course we are limited by the body, but we should try to reduce that limitation as much as possible. ऐसा नहीं कि हम खाना पीना, खाना सोना सब बंद करके 24 घंटे हरिनाम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। it is impractical. We have to be practical, but at the same time practical का मतलब ये नहीं कि हम बस बॉडी को पूरी तरह से शरणागत हो जाओ। Now we are fully surrendered to the body. What our body says we'll do. No, we should try to reduce the bodily needs and increase the spiritual shelter. आप 100% ट्रांसेंडेंटल नहीं भी बन सकते हो, तो 10% बनो, 20% बनो, जितना बन सकते हो उतना बनो, right? So therefore we should aspire to be like that, correct? We should not fully surrender, unconditionally fully surrender to the body. No, right? We should keep the body in control, not be in the control of the body, right? Yes, Prabhuji. We should aspire. हाँ, फिर भी फेल होंगे तो भगवान का शेल्टर लेते रहना, और क्या। All right, so there's a question in the chat. Unnati. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Any devotee who commits mistake before coming to bhakti keeps on doing the same mistake even after being in bhakti. It is affecting other devotees as well. We're also getting affected by it. Should we give up association with that devotee? अगर हम affected हो रहे हैं तो उनसे दूर रहना जरूरी है। उन्नति, are you there? है कि नहीं? Yes, Prabhuji. हाँ, अगर आप affected हो रहे हैं तो दूर रहना चाहिए। दूर रहने का मतलब यह नहीं कि अपराध करना, दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उनके बारे में गलत सोचना। उनसे दूर रहना इसलिए जरूरी है खुद के प्रोटेक्शन, नहीं तो फिर वो टेंडेंसी आप में भी आ सकती है। इसलिए दूर रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वी शुड प्रोटेक्ट आवर भक्ति एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर अपने भक्ति को बचाना जरूरी है। तो इसलिए अगर किसी के अंदर गलत टेंडेंसी उससे दूसरे लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जरूरी है।
एट द सेम टाइम दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उनके बारे में गलत सोचना या उनको मन में अपराध करना, नहीं। ठीक है, वो आपने जैसे बोला ही और शी इज ट्राइंग टू रेक्टिफाई, वो रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको हेल्प करिए, और मन में भी उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, चलो वो भक्ति बनने की प्रयास कर रहे हैं, पर हम एसोसिएट नहीं करेंगे फिर भी उनसे। ऑलराइट उन्नति, डज इट आंसर क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम खुद डूब जाएंगे। यस प्रभुजी। हाँ, ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को पहनाना है, फिर दूसरों को पहनाना है ना। यस प्रभुजी। तो वी शुड सेव योरसेल्फ, देन यू कैन डू अदर थिंग्स। स्पेशली अगर कोई 4 नियम फॉलो नहीं कर पा रहा है या कुछ ऐसा है, तो ऐसे व्यक्ति से तो बहुत दूर रहना जरूरी है, नहीं तो वो टेंडेंसी आप में भी आ सकता है। एसोसिएशन का प्रभाव पड़ता है उससे। ऑलराइट, यस प्रभुजी, टोटली सैटिस्फाइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो फिर हम यहाँ एंड करते हैं। जय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद